Assalamu alaikum students. Today's agenda is to cover your experiment number 5 for your digital system design lab, and its title is Sequential Logic Design using Verilog HDL. And the components we will be designing in this experiment are flip-flops and resistors. Flip-flops are the basic or the fundamental units of all the memory systems, all the memory units that we utilize in a computer system. So obviously our first objective will be to understand and design a flip-flop, and then we will move on to the other components. So let's see that how we are going to design this. I have presented some lab objectives that you're supposed to mention in your lab report. Now previously you have already gone through the combinational circuit design using Verilog. However, in this lab we will be focusing on a different topic compared to the previous experiments that you have performed. And in this experiment and onwards, most of the experiments will be focusing the sequential logic circuits, such as the flip-flops, registers, or other memory units, right? Now, since we already know that both the combinational logic and the sequential logic circuits are theoretically completely different kind of logic designs, and in a combinational logic, all the outputs are dependent upon the present state of the input. But however, in a sequential logic design, all the outputs are dependent not only on the present inputs but also on the previous inputs. So that's why we recognize the memory concept in the sequential logic circuits. And the most famous ones are the synchronous sequential logic circuits. So in this particular experiment, we will be focusing on the synchronous sequential logic circuit as well. And I am going to design a D flip-flop in this experiment. Why a D flip-flop? Because the D flip-flop is the simplest of all other flip-flops, right? And we can see that why it is simplest, because it has the simplest set of simplest kind of truth table. We will simply look at its truth table and then we will design its Verilog code. So let's revise our concept of a D flip-flop. I will suggest that you go through this whole design and refresh your memory that how does this flip-flop actually works. I will not tell you that how this flip-flop actually works. I suppose that you should already know this. I will be just letting you know that how does this truth table actually defines its working. It has two sets of inputs, clock CK and D. D is the input and clock is the input, and the outputs are Q and Q complement. Obviously, both of the output states Q and Q complement are complements of each other. So our basic output is Q, right? So obviously, if we get Q, then obviously we know that Q complement should be the complement of this state, whatever state is Q. So when we have in the first row, when we have clock as 0, then that means that this is actually not in an operative state, because the output is only showing you the previously stored input, or whatever is stored is within this flip-flop. So this is only actually working as a memory unit when the clock is 0. And when the clock is 1, then whatever is applied at the input D, it will appear at the output Q. When we have D as 0, the output is Q as 0. And when we have D as 1, the output Q is 1, right? So it is the simplest of all truth tables of the flip-flops. So it is only operative when we have clock as 1, right? Now
I have shown here a design of a shift resistor. It is a 4-bit shift resistor. Since we have a set of 4 flip-flops in this, so it is actually each flip-flop is of 1 bit, so this is actually a 4-bit shift resistor. Now why it is a shift resistor? Because it is actually shifting whatever is present at the input D, it is shifting that bit one by one or bit by bit. In the first case, we have a JK flip-flop that is actually working as a shift register, and it is actually shifting from left to right. This is the input and this is the output. So we call it a left shift resistor. Right, so this particular example is of a left shift resistor, and we are applying the input at D, and it is shifting that input to output, serial output data, right? And this is the design of a 4-bit register. Both of the designs are pretty much similar, but however there are a few differences. In this register, we can see that there is no shifting operation being performed. Whatever is being applied at D, it is being appeared at Q. If we apply 1 at D0, we will get 1 at Q0. राइट, सो D1 पे हमने जो अप्लाई किया वो Q1 पे रिसीव हुआ, D2 पे हमने जो अप्लाई किया वो Q2 पे रिसीव हुआ, D3 पे जो अप्लाई किया वो Q3 पे रिसीव हुआ. So this actually register is simply a memory unit. It is not shifting or not doing anything special about whatever is being applied at the inputs. But however, in the shift register, we can see that if we apply any particular data at input D, it is appearing at Q, but however this Q is becoming the input of the next flip-flop. This is the first flip-flop, second, third and fourth, right? This output of the first flip-flop is becoming the input of the second flip-flop. Similarly, this output of the second flip-flop is becoming the input of the third flip-flop. Output of third flip-flop is becoming the input of the fourth flip-flop. Right, so this is actually we are going to design. Lab tasks will be discussed in a while. First, let's draw this. I have designed a D flip-flop here, and I'm going to design a 4-bit shift register. It has obviously 2 inputs. This flip-flop has 2 inputs, D and clock. So first input is the clock. This is the clock, this is the clock, and this is the clock, right? So it is synchronously being applied to all the 4 flip-flops, right? This is the D flip-flop 1, DFF 2, DFF 3, and DFF 4. And the other input is D. And this D is being, whatever is present at D will appear at Q, because that is how our D flip-flop works. And this Q is becoming the input of the next flip-flop, right? So if we call it Q0, then this is becoming the input of next flip-flop, and its output is called what? Let's suppose we call it Q1, and this is becoming the input of the third flip-flop. And this output of the third flip-flop is, let's suppose we call it Q2. It is becoming the input of the fourth flip-flop, and this final output is called Q4. So in this case, we can see that we require at least 4 bits of output Q. But however, the other inputs D and clock, they can be of single bit, because they are not requiring anything
special or anything else regarding their size, right? So let's try to design a D flip-flop first. First, we are going to design this D flip-flop. According to our truth table, let's write it down. D flip-flop. Yes. And it has, a D flip-flop has one output Q, and it has two inputs, clock and D. And let's try to define another input, reset. This reset is actually just a controlling input that controls the clock. This reset, if it becomes 0, then this clock should be 0. And when clock is 0, then that means that this memory unit should, then this flip-flop will not operate. It will not operate as a flip-flop, right? It will not be in active mode, right? So let's try to define this flip-flop now. Right. So according to this truth table, when we have clock as 0 and also reset as 0, then in both cases, then in both of these cases, this flip-flop is supposed to not to work. Is not supposed to work, right? So let's write down the always block. And now in this particular case, there are two rules of thumb for this, for designing any sequential logic design. एक तो ऑलवेज ब्लॉक जब हमने यूज़ करना है तो इसके अंदर हमने जो इस मॉड्यूल, ये जो हमने मॉड्यूल डिफ़ाइन किया है DFF या कोई भी और मॉड्यूल अगर हम डिफ़ाइन करेंगे तो उसके लिए ऑलवेज ब्लॉक के अंदर जो हमने पैरेंथेसिस के अंदर जो हमने इवेंट, ट्रिगरिंग इवेंट यूज़ करना है, दैट विल बी ऑफ क्लॉक. क्लॉक इज़ द इनपुट और ये एक मस्ट इनपुट है, जो चाहे एसिंक्रोनस डिज़ाइन है चाहे सिंक्रोनस डिज़ाइन है सीक्वेंशियल सर्किट्स का, क्लॉक इज़ द मस्ट. तो हम ये इस पर्टिकुलर केस के अंदर या कोई भी और केस को, उसके अंदर हम क्लॉक एक ट्रिगरिंग इवेंट हम लाजमी यूज़ करेंगे. आइदर अब क्लॉक का ट्रिगरिंग इवेंट जो है वो पॉजिटिव एज भी हो सकता है और नेगेटिव एज भी हो सकता है. तो इस केस के अंदर हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि इट इज़ एक्चुअली वर्किंग और दिस मॉड्यूल इज ट्रिगरिंग एट द पॉजिटिव एज ऑफ द क्लॉक, राइट. और बाकी इनपुट्स को अभी हमें फ़िलहाल मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है इस ऑलवेज ब्लॉक के अंदर, उसको हम मैनुअली डिफ़ाइन करेंगे. नाउ अब हम पहला एक चेक तो इसके अंदर लगा लेते हैं कि इफ़ रीसेट इक्वल्स 0, तब हम चाहते हैं कि ये एक्टिव मोड में ना हो, और हम क्या कर देते हैं कि डी के अंदर हमने यहाँ पर डी के अंदर हम पास करवाना चाह रहे हैं 1 बिट 0, राइट. एंड हम इस पर्टिकुलर केस के अंदर जो हम असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ नॉन ब्लॉकिंग. तो आपने दो चीज़ें ध्यान में रखनी है. रूल ऑफ थम्स क्या है? पहली कि हमने ऑलवेज ब्लॉक के अंदर ट्रिगरिंग इवेंट जो है वो क्लॉक का लाजमी एंटर करना है. आइदर इट कुड बी पॉजिटिव एज और नेगेटिव एज. नेगेटिव एज का जो सिंटैक्स है दैट इज़ NEGEDGE, राइट. ये इसका कीवर्ड है. तो यहाँ पर हमने क्या किया कि हमने एक चेक लगाया है कि अगर रीसेट इज़ 0, देन क्या करो कि डी के अंदर हमने 0 पास करवा दिया. ठीक है. इट्स अप टू अस बिकॉज हमारा जो फ्लिप फ्लॉप है डी फ्लिप फ्लॉप, इसकी लॉजिक के अकॉर्डिंग
when the clock is 0 then this is not in an operative mode. तो हमने यहाँ पर एक रीसेट का एक एडिशनल वेरिएबल ऐड किया है, दैट इज़ इफ़ इट इज़ 0 देन हम चाह रहे हैं कि इनपुट के अंदर वो 0 पास करते, राइट। तो अब उसके बाद हमारे पास आता है सेकंड, एल्स क्या करो, राइट, डी के अंदर हम पास करवाना चाह रहे हैं, दिस इज़ दी whatever is present in D. सॉरी, यहाँ पर आउटपुट मुझे मेंशन करनी थी, दिस इज द आउटपुट, राइट। सो नाउ इट इज़ मेकिंग सेंस कि हम चाह रहे हैं कि अगर रीसेट इज़ 0 तो आउटपुट के अंदर 0 पास कर दो, एंड इफ रीसेट इज़ 1 देन दैट मीन्स कि हम आउटपुट के अंदर जो डी के अंदर स्टोर्ड है हम वही पास करवाना चाह रहे हैं, राइट। तो नाउ इट इज़ फुलफिलिंग द रोल ऑफ दिस ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल के अंदर अगर डी के अंदर जो भी पड़ा हुआ है, आइदर इट इज़ 1 0 और 1, और क्लॉक साइकिल जो है या क्लॉक जो है दैट इज़ 1, तो इन दैट केस आउटपुट के अंदर हमारे पास जो भी डी के अंदर पड़ा होगा वो रिसीव हो जाएगा। ठीक हो गया, यहाँ पर हमारा मॉड्यूल DFF कंप्लीट हो गया। अब हमने डिज़ाइन करना है main module, that is the shift register, and in this particular case the left shift register. Yes, and इसके अंदर आउटपुट है और इनपुट है क्लॉक और D. दिस इज़ द आउटपुट, बट हाउएवर आउटपुट का सेंस इस डिज़ाइन के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर मेंशन किया कि इट शुड हैव 4 बिट साइज। तो हम यहाँ पर एक बस ऑब्वियसली इसको यूज़ करेंगे, दैट शुड हैव अ साइज ऑफ 4। नेक्स्ट, फिनिश। ओके, तो अब हम इसके अंदर DFF ऑलरेडी बना चुके हैं, तो अब हम उनको इनहेरिट करते हैं जस्ट फॉलोइंग दिस फिगर। इस फिगर के अंदर हम DFF 1 2 3 और 4 इनहेरिट कर रहे हैं, और सबकी सीक्वेंस जो है हम इस तरह एडजस्ट करेंगे कि पहले की इनपुट है D और इसकी आउटपुट है Q0, और दूसरे की इनपुट है Q0, राइट। दिस Q0 इज़ बिकमिंग द इनपुट ऑफ द सेकेंड फ्लिप फ्लॉप, तो इसकी इनपुट हो जाएगी Q0 और आउटपुट हो जाएगी Q1। तो इसी सिनेरियो को हम फॉलो करते हैं यहाँ पर, एंड DFF है, इसका नाम हम रख लेते हैं U1, और इसकी इनपुट है सबसे पहले आई थिंक लेट्स लुक एट दिस, हमने Q डिफाइन किया, फिर क्लॉक, D और रीसेट। सो सबसे पहले हम Q आउटपुट डिफाइन करेंगे, और फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप जो है इसकी आउटपुट का नाम है Q0, Q0 और इनपुट है D, नहीं इनपुट बाद में आ रही है, पहले क्लॉक आ रही है, एंड D आ रही है, और उसके बाद reset RST, right, yes. So this is, now let's try to inherit it 4 times because हमारा 4 bit shift register है, और हमें 4 टाइम ही इस फिगर के अकॉर्डिंग फ्लिप फ्लॉप को, या एक फंडामेंटल जो हमने यूनिट डिज़ाइन किया इसको 4 टाइम्स हमें इनहेरिट करना है, राइट। तो अब इनका हर चारों के लिए नाम चेंज कर लेते हैं, दिस शुड बी U2 U3 U4, और इसकी आउटपुट जो है अब सेकंड फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट जो है दैट इज़ Q1, थर्ड की Q2 एंड फोर्थ की this should be Q3 not Q4, this should be Q3, 1 2 and 3,
अब फर्स्ट की इनपुट तो डी ही थी, बट सेकंड की जो इनपुट है दैट इज़ Q0, थर्ड की इनपुट है Q1 और फोर्थ की है Q2, राइट? ओके, इसको सिंथेसाइज करते हैं and it's giving some errors. Wire Q is not legal reg, right? तो हमें यहाँ पर सिंस हम ऑलवेज ब्लॉक नहीं यूज़ कर रहे तो हमें रेज के बजाय हम वायर डिफाइन कर लेंगे, तो इट्स गोइंग टू वर्क. लेट्स रीसिंथेसाइज इट. ओके, अगेन कोई एरर आ रहा है. इट शुड बी ओके. Should there be line number 29? दोबारा यहाँ पर देख लेते हैं, पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है. ओके, यहाँ पर हम ऑलवेज ब्लॉक यूज़ कर रहे हैं तो हमें इसको एज रेज डिफाइन करना है. I think this time it's not going to give any problem. Right. Okay. सही. ठीक है, हम इस वार्निंग को इग्नोर कर सकते हैं. इट्स नॉट गोइंग टू मेक एनी मच डिफरेंस. तो अब हम इसका टेस्ट बेंच डिफाइन करते हैं. Let's see that if this design is correct or not. यस, हमें शिफ्ट रजिस्टर का ही टेस्ट बेंच बनाना है, तो हम इसी के साथ ही इसको लिंक करेंगे. ओके, अब इसने इनिशियली क्लॉक और डी बोथ को जो इनपुट्स हैं उनको उसने एज रेज डिफाइन कर दिया और इन क्यू को उसने एज वायर डिफाइन कर दिया. इट्स ओके, इट्स फाइन. तो अब इसने यहाँ पर क्लॉक को 0 इनिशियलाइज़ किया है और डी को भी इसने एज 0 इनिशियलाइज़ कर दिया है, राइट? तो आई थिंक इसके अंदर हमें थोड़ी सी चेंजेस करनी पड़ेंगी. फर्स्ट थिंग तो ये है कि क्लॉक को इनिशियलाइज़ करने के बाद इसको एज अ क्लॉक इसको एज क्लॉक इसका बिहेवियर भी शो करवाना पड़ेगा. तो एक तो हम नॉन ब्लॉकिंग असाइनमेंट ही यूज़ करते हैं इसके लिए, और डी को हमें इनिशियलाइज़ कराने की फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है. वी शुड इनिशियलाइज़ RST इंस्टेड. RST को हम इनिशियलाइज़ करा देते हैं विद 1 से हम इसलिए इनिशियलाइज़ करा रहे हैं बिकॉज आई वांट टू कीप दिस फ्लिप फ्लॉप इन द ऑपरेटिव मोड. तो अगर मैं इसको रीसेट को 0 कर दूंगी तो ये आउटपुट्स मुझे सब केसेस के अंदर 0 ही शो करेगा, राइट? तो अभी हमें डिले देने की ज़रूरत नहीं है. हमने यहाँ पर
इनिशियलाइजेशन कर ली और उसके बाद अब मुझे क्या करना है कि क्लॉक को डिफ़ाइन करना है। क्लॉक का सिग्नल जो है वो कुछ इस तरह से होता है दैट यू हैव राइट एंड इट्स एन इनफाइनाइट स्टेट, और ये हर यूनिट टाइम के बाद अपनी स्टेट चेंज करता है। राइट, क्लॉक का सिग्नल ही कुछ इस तरह से होता है। तो हमें कुछ इसको मैनुअली डिफ़ाइन करने की ज़रूरत है। दैट लेट्स सपोज हम यहाँ पर एक ऑलवेज कमांड यूज़ करते हैं एंड हर 10 नैनो सेकेंड्स के बाद ये क्या करे, क्लॉक को की स्टेट चेंज कर दे। तो अब ये क्या कर रहा है कि एक लूप कॉन्टिन्यूसली चला रहा है और हर 10 नैनो सेकेंड्स के बाद वो क्या कर रहा है कि क्लॉक के अंदर जो हमने इनिशियलाइज उसको किया हुआ था 0 से, और उसकी वैल्यू जो है वो हर 10 नैनो सेकेंड्स के बाद वो चेंज कर रहा है। राइट, तो उसके बाद अब हम आते हैं अपनी जो हमने स्टिमुलस प्रोवाइड करना है, जो इनपुट है हमारी डी, उसके लिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि अगेन हम इनिशियल ब्लॉक स्टार्ट करते हैं और इसके अंदर हम डी के अंदर पास करवाना चाह रहे हैं 1, 20 नैनो सेकेंड्स का हम डिले देते हैं ना। 20 नैनो सेकेंड्स का डिले देने का क्या मकसद है? यहाँ पर मैंने ये मेंशन किया कि हर 10 नैनो सेकेंड्स के बाद क्लॉक अपनी स्टेट चेंज कर रही है। राइट, इसका मतलब कि पॉजिटिव एज अगर इसका क्लॉक का आ रहा है तो ये 10 नैनो सेकेंड्स तक पॉजिटिव एज रहेगा एंड नेक्स्ट 10 नैनो सेकेंड्स के बाद ये अपनी स्टेट अगेन चेंज कर लेगा। इट विल बिकम द नेगेटिव एज और द ज़ीरो स्टेट। तो इसका मतलब कि इस क्लॉक ने अपना एक टाइम पीरियड या एक क्लॉक साइकिल जो है वो 20 नैनो सेकेंड्स में कंप्लीट किया। बोथ ऑफ दीज दे बोथ कॉन्स्टिट्यूट वन कंप्लीट क्लॉक साइकिल। राइट, तो मैं ये चाह रही हूँ कि डी की एक वैल्यू को ये ऑब्जर्व करें तो फॉर वन कंप्लीट साइकिल, क्लॉक साइकिल। राइट, और देन अगेन मैं डी के अंदर 1 पास करवाती हूँ सेकेंड, और 20 नैनो सेकेंड के डिले के बाद डी की वैल्यू मैं फिर चेंज करती हूँ एंड दिस टाइम आई एम गोइंग टू पास 1 एंड अगेन 20 नैनो सेकेंड्स के बाद मैं डी की वैल्यू फिर चेंज करना चाह रही हूँ। लेट्स कीप इट एज 0। तो मैंने एक्चुअली डी के अंदर मैंने अब शिफ्टिंग चेक करनी है ना, तो मैंने डी के अंदर फर्स्ट टाइम पास किया 0, 20 नैनो सेकेंड्स का डिले दिया, एक क्लॉक साइकिल का वेट करेगा और उसके बाद डी की वैल्यू चेंज करेगा 1, और उसके बाद 20 नैनो सेकेंड्स के बाद अगेन डी की वैल्यू चेंज करेगा 1 एंड 20 नैनो सेकेंड्स के बाद डी की वैल्यू हो जाएगी 0। राइट, तो इसके बाद हम इसको एंड मॉड्यूल कर देते हैं, इस बिगिन का एंड करते हैं, और उसके बाद एक और चीज़ हम ऐड कर लेते हैं। ओके, डजेंट मैटर अगर हम ऐड नहीं भी करते तो इसको हम मैनुअली भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। आई विल लेट यू नो अबाउट दैट कमांड इन योर लैब लेक्चर। तो हमने इसको सिंथेसाइज कर लिया था, सो लेट्स गो ऑन टू द टेस्ट बेंच। लेट्स चेक द बिहेवियरल सिंटैक्स। ओके, एक चीज़ इसके अंदर मैंने ऐड नहीं की, वो हम ऐड कर लेते हैं फिनिश की कमांड। राइट, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरा इनफाइनाइटली क्लॉक न चलती रहे, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद वो स्टॉप हो जाए। नाउ अच्छा, ओके, RST इज़ नॉट डिक्लेयर्ड। यहाँ पर मैंने RST आई थिंक नहीं डिक्लेयर किया। राइट, तो इसको हम यहाँ पर मेंशन कर देते हैं, इनपुट RST
इसको रीसिंथेसाइज कर लेते हैं। राइट, तो इट्स इज फिनिश्ड नाउ। इसकी टेस्टिंग हो गई, सो अब हम इसको दोबारा से टेस्ट बेंच को हम चेक कर सकते हैं। ओके, अब इसको हमने चूँकि वहाँ पर डिफ़ाइन कर दिया तो हमें यहाँ पे भी डिफ़ाइन करने की ज़रूरत है। तो इनपुट ही है तो इट विल बिकम आर एस टी हियर, और इसको हमें यहाँ पर लिंक भी करना होगा डॉट आर एस टी को हम आर एस टी के साथ, क्योंकि हमने वेरिएबल का नाम चेंज नहीं किया, और यहाँ पर हम एक कॉमा भी डालेंगे। राइट, तो अब हम इसको दोबारा से चेक करते हैं। ओके, अब हम इसको फाइनली सिमुलेट कर लेते हैं और लेट्स सी कि जो हमने इनपुट के ऊपर डाटा शिफ्ट किया है, डाटा एंटर किया है, वो इसको शिफ्टिंग लेफ़्ट शिफ्टिंग करके दिखाता है या नहीं दिखाता। बिकॉज अकॉर्डिंग टू आवर लॉजिक ये लेफ़्ट शिफ्ट रजिस्टर है एंड इट शुड शिफ्ट all the bits, input bits, one by one towards left side. तो अभी हम इसकी वेव फॉर्म ऑब्जर्व करते हैं तो हमें इसका बेटर आइडिया हो जाएगा। राइट, ओके, तो अब इसके अंदर फर्स्ट केस में हम देखते हैं कि व्हेन वी हैव आर एस टी एज वन, आर एस टी को हमने एक कांस्टेंट वन वैल्यू असाइन की हुई है स्टार्ट में ही, तो उसको हमने कोई वेरिएबल ऐसा असर्ट नहीं किया कि जो इसकी वैल्यू समहाउ चेंज करे। तो ये थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट आर एस टी वन ही रहेगी। इसको मैनुअली आप बाद में भी चेंज कर सकते हैं। नाउ डी इज़ ज़ीरो, क्लॉक इज़ ऑल्सो ज़ीरो। क्लॉक ज़ीरो होने का मतलब ये है कि डी की वैल्यू जो है वो इररेलेवेंट है। आउटपुट पे कुछ भी आएगा दैट इज़ नॉट ऑफ द प्रेजेंट स्टेट ऑफ द फ्लिप फ्लॉप, दैट इज़ इन एन इनएक्टिव स्टेट, और इसको मेमोरी स्टेट भी हम बोलते हैं। राइट, अब नेक्स्ट में हम आते हैं कि हमारे पास क्लॉक अब वन हो गई है। क्लॉक वन होने का मतलब ये है कि अब ये एज अ शिफ्ट रजिस्टर ऑपरेट कर रहा है। तो हमारे पास डेटा जो है इनपुट दैट इज़ ज़ीरो, और वो डेटा जो है वो इसने शिफ्ट कर दिया है टू द लेफ्ट लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट ऑफ द क्यू। क्यू की 4 बिट्स है, क्यू की 4 बिट्स है, और इसकी जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है उसमें उसने जो डेटा में जो ज़ीरो पड़ा हुआ था वो उसने शिफ्ट कर दिया है। राइट, तो अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं, नेक्स्ट 10 नैनो सेकेंड्स का जो गैप है उसके अंदर क्लॉक साइकिल, क्लॉक जो है दैट इज़ ज़ीरो, दिस मीन्स दैट इट इज़ गोइंग टू रिटेन इट्स प्रीवियस स्टेट। प्रीवियस स्टेट क्या थी, वही फर्स्ट 3 बिट्स जो हैं वो डोंट केयर है, और इसने ज़ीरोथ बिट को लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट में शिफ्ट किया। अब नेक्स्ट स्टेप पर देखते हैं, यहाँ पर क्लॉक इज़ वन और डी का डेटा जो है वन हो गया। यहाँ अकॉर्डिंग टू आवर टेस्ट बेंच हमने 20 नैनो सेकेंड्स के फर्स्ट 20 नैनो सेकेंड में डी ज़ीरो तो ट्रांसमिट कर दिया, सेकेंड में हमने वन ट्रांसमिट किया हुआ है यहाँ पर, और 20 नैनो सेकेंड्स का फिर डिले दिया है। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि इसके अंदर हमने हमारे पास ज़ीरो के बाद वन रिसीव हुआ था, अब उसने ज़ीरो को वन बिट लेफ़्ट शिफ्ट कर दिया है और वन को उसने लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट पर स्टोर करा दिया। सो दिस शोज दैट इट इज़ एक्चुअली फॉलोइंग द लेफ़्ट शिफ्ट ऑपरेशन। तो अब नेक्स्ट स्टेज पे जब हमारे पास क्लॉक साइकिल ज़ीरो है तो इट इज़ गोइंग टू रिटेन इट्स वैल्यू
एंड उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं जब हमारे पास क्लॉक इज़ अगेन 1 और अब हमारे पास डेटा की वैल्यू अगेन चेंज हुई है एंड दिस इज़ 1, द सेम वैल्यू जो कि प्रीवियस केस में थी 1। तो यहाँ पर भी टेस्ट बेंच में भी हमने ऐसे ही किया कि 0 के बाद 1 के बाद पास करने के बाद अगेन हमने 1 पास किया, राइट। एंड हमने ये 1 ऑब्ज़र्व किया कि ये लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट पे स्टोर हो गया और बाकी दोनों फर्स्ट जो बिट्स थी वो 1 बिट फर्दर लेफ्ट शिफ्ट हुई हैं। अब नेक्स्ट में क्लॉक साइकिल अगेन 0 है एंड इट इज़ गोइंग टू रिटेन इट्स वैल्यू टिल 20 नैनो सेकेंड्स ऑफ गैप। और उसके बाद आते हैं लास्ट पॉइंट पे। लास्ट पॉइंट के ऊपर अब हमने टेस्ट बेंच के अंदर अप्लाई किया है 0, राइट। और ये 0 जो है अब लास्ट लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट पर स्टोर हो गया है और फर्स्ट 3 स्लॉट्स जो है ये फिल हो गई हैं। सिमिलरली आप फर्दर डेटा इसके अंदर ट्रांसमिट करते जाएंगे तो ये लूप चलता रहेगा आपका। और ये आपकी वेव फॉर्म है, ये वाली प्रीवियस जो डेटा है आपका, लेट सपोज अगर इसके बाद 1 बिट फर्दर होती तो ये जो 0 है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट वाला ये ओमिट हो जाएगा, ये शिफ्ट आउट होता जाएगा इस रजिस्टर में से। तो इसका मतलब कि ये लेफ़्ट शिफ्टिंग कर रहा है और जो ओवरफ्लो होने के बाद उसकी जो बिट्स फर्दर जो लेफ़्ट होती हैं वो डिस्कार्ड कर देगा या समहाउ किसी और पर्पस में यूज़ हो जाएगी, डिपेंडिंग अपॉन हाउ योर रजिस्टर्स आर इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर और डिपेंड्स अपॉन व्हाट यू आर ट्राइंग टू डिज़ाइन। So this concludes our left shift resistor. Now let's come back to the tasks that I have designed for you to do at home. Okay, the first task is that you have to implement a 4-bit positive edge triggered universal shift register using 4 D flip-flops and verify the design. Now what is a universal shift register? According to this particular example, you can see that this is a left shift resistor. Both of these are left shift resistors. Similarly, there is another design that is actually a right shift resistor. Also, there is another resistor that is supporting both the directions of left and right. So you are supposed to utilize some additional variables to design a universal shift register. Universal shift register ने left और right both directions को support करना है, तो उसके लिए आप एक वेरिएबल यूज़ करोगे फॉर लेफ्ट एंड एक वेरिएबल आप यूज़ करोगे फॉर राइट फॉर राइट शिफ्टिंग, एंड उस वेरिएबल को इंटरचेंजेबली आप उसकी वैल्यू चेंज करते जाओगे, राइट। कि आपने कितने टाइम पीरियड के लिए उस वेरिएबल की वैल्यू लेट सपोज 0 रखी है तो वो लेफ़्ट शिफ्टिंग कर रहा है और उस वेरिएबल की वैल्यू 1 रखी है तो वो राइट शिफ्टिंग कर रहा है, राइट। तो आपको थोड़ी सी लॉजिक का आइडिया हो गया। सिमिलरली आप उसके अंदर फर्दर और भी कोई वेरिएबल यूज़ कर सकते हो, लाइक रीसेट का वेरिएबल भी आप यूज़ कर सकते हो कि विच एक्चुअली कंट्रोल्स। सो दिस डायरेक्शन कंट्रोल वेरिएबल इज़ एक्चुअली अ कंट्रोलिंग थिंग जो कि इसकी लेफ़्ट शिफ्टिंग या राइट शिफ्टिंग। तो यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर ने क्या करना है कि बोथ डायरेक्शंस को सपोर्ट करना है। तो आपने एक ऐसा शिफ्ट रजिस्टर बनाना है 4 बिट का ही हो, दैट इज़ एक्चुअली सपोर्टिंग द डायरेक्शंस ऑफ बोथ द लेफ्ट एंड राइट। तो यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब हम आते हैं सेकंड टास्क पर, और इसके अंदर एक चीज़ यहाँ पर मेंशन कर दी है मैंने कि आपका जो कंट्रोलिंग इवेंट होगा या ट्रिगरिंग इवेंट होगा दैट विल बी द पॉजिटिव क्लॉक एज, राइट। नेगेटिव की ज़रूरत नहीं है। सिमिलरली टास्क 2 जो है दैट इज़ अ पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड 32 बिट रजिस्टर। तो इसका मतलब पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड तो जस्ट लाइक द प्रीवियस केस है, बट this time you are going to design a 32-bit register with active high reset input और active high enable। active high enable और active high reset ये both सिर्फ controlling variables हैं जो कि इस 32-bit register की functionality को control कर रहे हैं। that both
वेरिएबल्स की वैल्यूज़ हाई होंगी तो ही ये एक्टिव मोड में होना चाहिए। तो अब रजिस्टर का डिज़ाइन आपको मैंने बता दिया कि ये 4 बिट रजिस्टर है, इसका डिज़ाइन है। इसके अंदर हम जो इनपुट के ऊपर हर फ्लिप फ्लॉप के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं वही हमें आउटपुट पे रिसीव हो रहा है, राइट। तो आप इसको देखकर इस 4 बिट को देखकर एक 32 बिट का रजिस्टर भी बना सकते हैं। और इसके अंदर एडिशनली आपको 2 मोर कंट्रोलिंग वेरिएबल्स ऐड करने हैं, एक एनेबल का और एक आई थिंक यस एक्टिव हाई रीसेट, एक रीसेट वेरिएबल भी ऐड करना है, राइट। रीसेट वेरिएबल तो आपको पहले मैंने ऐड करके दिखा दिया कि किस तरह से होता है। तो आपको सिर्फ ये चेक रखना है कि रीसेट की वैल्यू जो है दैट शुड बी हाई इन केस ऑफ operating this register. So these are supposed to be your boot tasks. So I will be handling any queries related to these tasks in your next lecture, inshallah. So I'm going to end this session now. This concludes our today's lecture. Allah Hafiz.